ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਭ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਵਾਚਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਭ ਵਿਊਅਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਵਾਇਰਸ ਦਾ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੋਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਘਟ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰੀਓਪਨ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਵਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਅਪਡੇਟ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੋਚਰ ਜੀ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ AK ਕਟਿਆਰ ਜੀ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡੀਐਮ ਕਟਿਆਰ ਜੀ ਮੈਮ ਡੀਐਮ ਕਟਿਆਰ ਡੀਐਮ ਕਟਿਆਰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਮੀ ਕਸਤਰੀਆ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਸਟੇਟ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਮੈਨੇਜਰ ਡਾਕਟਰ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਹ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਨ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ। ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਹੈ ਨੇ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 400-500 ਕੇਸ ਸੀਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 400-500 ਕੇਸ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਐ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 42,000 ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਕੜਾ। देखो कितनी हैरानी की गल है, दिल्ली 42,000 टप चुका है, महाराष्ट्र 1 लाख टप चुका है। जरा मतलब वुहान जो केसिस है सन, कल्ले बॉम्बे दे वुहान तो ज्यादा केसिस ने। पब्लिक की अवेयरनेस की प्रॉब्लम तो आंदी है। दूजा आंदा साडा जिहड़ा पॉपूलेशन डेंसिटी। 17 मई नूं जिहड़ा लॉकडाउन 4 खत्म होया इंडिया विच, उस तो बाद लोग इस तरह बाहर निकल आए ने जिवें पता नहीं कुछ है ही नहीं सीगा। सड़कों तो तुसीं देखो गौरमेंट ने अलाउ किया सीगा, पहले कि इन्होंने क्या सीगा कि एक 2 व्हीलर ते सिंगल सवारी चलेगी, कार विच एक ड्राइवर प्लस 2 चलणगे। लेकिन हालात मैं दिल्ली विच अपने अखी देखी, तुहानूं दस्सां, एक 2 व्हीलर ते मैं 3-3 सवारियां अपने अखी देखियां ने। सब देखो गौरमेंट आके कुछ नहीं करेगी, सारा कुछ पब्लिक नूं भी सोचना पेगा। बिल्कुल ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ 3.25 ਲੱਖ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਟਲੀ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਾਂਸ ਨੂੰ, UK ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਟਾਪ 5 ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ SGPC ਆ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਗਈ, ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ NGOs ਆ ਗਏ, ਸਿੱਖ NGOs ਆ ਗਏ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੜ ਲਗਾਤੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ। ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚੀ ਇਹ ਗੱਲ? ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, SGPC ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਸਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂ SGPC ਨੇ ਕੋਈ COVID-19 ਵਾਰਡ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ 114 ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ 118 ਵਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੋਏ, ਲੰਗਰ ਅਸੀਂ ਖੂਬ ਲਗਾਏ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ?
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ USA ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 114 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਗਿਆ, 114 ਔਰ 118 ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਬ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ, ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕਰੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਟਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਟਿਆਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਡੈਂਸਿਟੀ, ਦੂਜਾ ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਆਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੇਰਲਾ ਨੰਬਰ 1 ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰਬਰ 2 ਸੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੇਰਲਾ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 14ਵੇਂ-15ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਿਸ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਹੀ ਸਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ, ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਘੱਟ ਨੇ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਬੈੱਡ ਖਾਲੀ ਪਏ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫ੍ਰੀ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹਸਪੀਟਲ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 5 ਲੱਖ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, 5 ਲੱਖ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਈਵਨ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਨ, ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ केयर नहीं है, डॉक्टर भी केयर नहीं कर रहे हैं, यानी कि हालात माड़े चल रहे हैं। कटियार साहब, आपके क्या हालात है उधर यूपी एरिया में? यूपी में इस समय हालात ठीक नहीं है, और लॉकडाउन 4 के बाद जैसे थोड़ा मूवमेंट चालू हुआ है, सरकारी ऑफिसेज खुल गए हैं और मार्केट्स भी खुल गई हैं, तो लोगों का आवागमन बढ़ गया है, इसलिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राजधानी लखनऊ में आज 36 नए मरीज पाए गए जो कोरोना पीड़ित थे, और मुख्यतः ये मरीज CM हेल्पलाइन ऑफिस के थे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन ऑफिस जो खोला गया है वहाँ 36 मरीज पाए गए। और हमारे यहाँ और भी जिले जो हैं, हमीरपुर में आज 13 नए मरीज पाए गए, अयोध्या फैजाबाद में 10 पाए गए, वाराणसी में 6 नए पाए गए, इलाहाबाद में 5 नए पाए गए। इस प्रकार यूपी में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे पास 6475 का आंकड़ा भी टीवी पे मैंने शाम को देखा था उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के जो उपाय और साधन सरकार दे रही है या जो गाइडलाइंस दे रही है, उसका पालन जनता नहीं कर रही, और केवल अनपढ़ जनता ही नहीं कर रही बल्कि उससे पढ़े लिखे MA LT लोग भी उसका पालन नहीं कर रहे हैं। उनकी ये मानसिकता है कि सावधानी नहीं भी रखेंगे तो ये कोरोना हमको नहीं होगा, मेरे पड़ोसी को होगा, या मेरे नौकर को हो जाएगा, मेरे सर्वेंट को हो जाएगा, मुझे नहीं होगा। ऐसी मानसिकता यहाँ पढ़े लिखे लोग भी रखते हैं। इस वजह से ये लगातार बढ़ता जा रहा, और अभी ये शहरों तक था, परंतु बॉम्बे, अहमदाबाद, मद्रास, दिल्ली से जो लेबर्स का, वर्कर्स का जो अपने घरों के लिए आगमन हुआ है, तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बसें लगवाई थी। जितने भी लेबर्स आ रहे थे लखनऊ में, बसों में भर भर के जा रहे थे, उसमें कोई सोशल डिस्टेंस नहीं था, उसमें कोई मुखौटे नहीं लगाए थे सभी। तो ये लोग जब अपने गांव में पहुंचे हैं, तो इन्होंने कस्बे स्तर पर, गांव स्तर पर अब तेजी से ये कोरोना बढ़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस टाइप की महामारियों से बचने के लिए जो भी उपाय होते हैं, जो भी सरकारी साधन और प्रयास होते हैं, उसके साथ साथ जनता का सहयोग बहुत जरूरी होता है। यदि जनता सहयोग नहीं करती है, उसका हमेशा उल्लंघन करती है,
तो ये बीमारियां बढ़ती चली जाती। उत्तर प्रदेश में विशेषकर ये समस्या बहुत है। यहाँ पर फर्स्ट लॉकडाउन जब हुआ था तो सड़कों पर छोटी पब्लिक, पुअर्स पब्लिक नहीं थी, सड़कों पर बड़ी पब्लिक जो गाड़ियों से चलती थी वो पकड़े जा रहे थे, उनकी चेकिंग हो रही थी क्योंकि वो मूवमेंट कर रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। तो यहाँ पर संपन्न वर्ग ने पहले इसका बहुत उल्लंघन किया। लॉकडाउन 2, 3, 4 तक चलता रहा तो उस समय तेजी से गति नहीं पकड़ी कोरोना ने, लेकिन अब ओपन होने से, मूवमेंट बढ़ने से बहुत तेजी से पकड़ रहा। और इसका जो मुख्य कारण है कि एक तो जनता जागरूक नहीं है, जनता को जागरूक हो जाना चाहिए कि हम जब सावधानी रखेंगे तभी ये इससे बचाव होगा। दूसरी बात ये कि इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल रहा बहुत तेजी से, और शहरों में, मैं लखनऊ में देख रहा हूँ, डेली में गवर्नमेंट ऑफिसर टहलता हूँ, मूवमेंट में रहता हूँ, तो 75% पब्लिक शहर में तो पालन कर रही है, 25% पब्लिक शहर में पालन नहीं कर रही। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में, कस्बाई क्षेत्रों में मात्र 20% पब्लिक इसका पालन कर रही है। कुछ लोग मुखौटे लगाए मिल जाएंगे, आप पूरे कस्बों में घुमाइए, कोई मुखौटा नहीं लगाए, कोई मास्क नहीं लगाए, कोई सैनिटाइजेशन नहीं कर रहा, सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हैं। इन सब कारणों से तेजी से बढ़ता जा रहा है। सरकारी जो प्रयास हैं, वो जितने भी सरकारी संसाधन सरकार के पास हैं वो प्रयास कर रही है, परंतु यहाँ की पॉपुलेशन इतनी अधिक है भारत की और उत्तर प्रदेश की कि ये प्रैक्टिकल में संभव नहीं है कि कम से कम आधी या 1/4 जनसंख्या का हम इसका परीक्षण करवा सकें कि कोरोना इनको है या नहीं है। इतने संसाधन नहीं है। ऐसी स्थिति में पब्लिक को ही सावधानी रखनी होगी और पब्लिक को इसके उपाय जो बताए गए उसका पालन करना होगा, तभी इससे हम बच सकते हैं। बहुत दिनों तक लॉकडाउन नहीं रखा जा सकता है। एक लंबी अवधि तक रखने से अर्थव्यवस्था चौपट होने लगी, तो इस वजह से सरकार को ऑफिसें खोलनी पड़ी। अभी भी हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज बंद हैं, बड़े मॉल्स बंद हैं, लेकिन पार्क वगैरह खोल दिए गए, पार्कों में लोग टहलने जा रहे हैं, तो जाहिर है वहां से भी फैल रहा है। तो मेरा जो मानना है कि सबसे पहले पब्लिक को ये समझना पड़ेगा कि हम चाहेंगे तो मुझे कोरोना नहीं होगा। केवल सरकार के सहारे ही हम बैठे रहे तो हो सकता है मुझे कोरोना हो जाए, मेरे पूरे परिवार को हो जाए, मेरे पूरे गांव को हो जाए। ये समस्या इंडिया में है और अभी तो फिलहाल नहीं लग रहा कि कोई एकदम जादू हो जाएगा या कोई टीका आ जाएगा उससे एकदम कंट्रोल हो जाएगा। हमें इसी कोरोना के साथ सावधानी बरतते हुए जीना पड़ेगा, जीना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सावधानी, क्योंकि देखिए आप यूएसए जैसे कंट्री जो इतने ज्यादा मेडिकल लाइन में माने जाते हैं कि हाईएस्ट सब कुछ, तो वहाँ कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो फिर हम इंडिया के बारे में क्या कह सकते हैं। हाँ जी परविंदर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाह रही थी, मैं जिवें कटियार साहब ने गल की है, मैं आज फेसबुक ते देख रहा थी, किसी ने एक पोस्ट पाई सी, कहना जी जो मैं घरों निकल के देखदा लोग एक दूसरे नाल कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, मोर देन 30% लोग जिहड़े विदाउट मास्क विदाउट ग्लव्स घूम रहे ने, ते लगदा कि यार कोरोना नाम की कोई चीज नहीं आई थी। हालांकि टीवी चैनल देखदा ते टीवी चैनल जो न्यूज़ दिखांदे ने लगदा यार कोरोना नाल अज ही मेरी डेथ हो जानी है। तो प्रॉब्लम पता की है, साडे लोकां विच अवेयरनेस नाम की चीज ते है ही नहीं है। पॉपुलेशन डेंसिटी भी है, अवेयरनेस भी नहीं है, वो सारा कुछ सरकारां कित्थों कर लेणगीਆਂ। और साडी सरकारां ते वैसे भी किन्ने काबिल ने, सबनूं पता है। देखो वर्ल्ड दी सैकेंड मोस्ट टॉप जी मैडिकल जे मामले की फैसिलिटी के मामले इटली सीगा। इटली के हालात पूरी दुनिया ने देखे ने। ऐसे हालात हो गए सन कि लोग हॉस्पिटलों के बाहर पाए सन, हॉस्पिटल बैड नहीं सन, लाशां रुल रही सन, उन्होंने लाशां नूं जिहड़े मतलब क्रिमेशन ग्राउंड जिहड़े उन्होंने फुल पाए सन। साडे तुसीं एक हो सकता एक वायरल वीडियो देखी होए, दिल्ली विच 2 क्रिमेशन ग्राउंड हैगे ने जिथे सीएनजी नाल क्रिमेशन हो रही है कोविड-19 केसेस दी। एक दिल्ली का पंजाबी बाग, एक दिल्ली का निगम बोध बाग। एक वीडियो आई दिल्ली के पंजाबी बाग, बंदा बोल रहा है पंजाबी बाग विच तकरीबन 50 जड़ी ने संस्कार हो रहे ने, हाले पिछे लाइन लगी हुई है, उहदे तो एंबुलेंस से बॉडीज उतर रही ने। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट दिखा रही है दिल्ली विच टोटल उस दिन 53 डेथ हुई ने, 50 लाशां सड़ रही ने, पिछे होर घट्टो घट्ट 20 पईयां ने। एक तो गवर्नमेंट के आंकड़े जिहड़े ने आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, छुपाए जा रहे हैं, कोई आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। पब्लिक जिहड़ी है अवेयरनेस दी। और तीसरी तुहानूं एक बड़ी हैरानी की गल दसां, देखो मैं वकील के नाल नाल मेरा अपना कैमिकल का भी काम है। मैं सोडियम हाइपोक्लोराइड और जिहड़ा सैनिटाइजर जिहड़े मेन 2 डिसइनफेक्ट करने वाले कैमिकल ने दोनों बनाना, हैंड वॉश भी बनाना।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, हैंड सैनिटाइजर बनाने वास्ते ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਐਲਕੋਹਲ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਥਾਈਲ ਇੱਕ ਮਿਥਾਈਲ। ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਥਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਥਾइल किल नहीं करता। लेकिन दोनों एल्कोहल ठंडे भी ने, दोनों एल्कोहल इनफ्लेमेबल भी ने, इक्को जे लगने ने। दिल्ली विच, मैं दिल्ली दी गल करदा, दिल्ली विच मोर देन 50% जगह ते जिहड़ा सैनिटाइजर बेचा जा रहा है ਉਹ ਵਾਲੇ ਐਲਕੋਹਲ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਕੋਹਲ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈਗਾ। ਲੋਕ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਿਕਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ? ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਡੇ ਦੇ ਜਾਂ ਵੀਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਮਟਮ ਕੀ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸਿਮਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੱਸੋ। ਮੈਮ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਸੰਬਰ 2019 ਚ ਵੂਹਾਨ ਚਾਈਨਾ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਐਂਡ ਨਾਓ ਜੂਨ 2020 ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਲੈਕਸ ਆਫ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਆਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਕ 3.25 ਲੱਖ ਕੇਸਿਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ 9,9500 ਐਂਡ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਫ ਆਈ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਰਾਈ ਸਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਏਰੀਆ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਦੇਅਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੱਕ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਵਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿੰਪਟਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫੀਵਰ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਕੋਲਡ, ਕਫ, ਖਾਂਸੀ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ ਦੈਨ breathing, it is basically a respiratory disorder, breathing problem ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੇਨ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਂਡ these symptoms ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ asymptomatic ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ symptoms ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਟ more problematic ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ if we talk about children ਤੇ ਜਿਹੜੇ 60 above old age group and symptoms ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਵੈਸੇ लगता नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई पर बहुत रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, एक पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो ਅਸੀਂ ਉਸ पेशेंट ਨੂੰ ਇੱਕ ICU ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਇੱਕ ਹਸਪੀਟਲ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ we are taking all the measures, all the protective measures, एक proper PPE kit, personal protective equipment, एक kit पा के face, mask, glove ऊपर तो लेके थल्ले तक ड्रेस पाई जाती हैगी है, वो पेशेंट ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ICU ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। so that way we are treating ਤੇ definitely ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ there is till now ਕੋਈ cure ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਐਂਡ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਾਈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ but basically ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਰਹੇ, we are treating the symptoms of a disease ਜਿਵੇਂ respiratory problem ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ we are acting, we are ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ symptoms treat ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ but ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ prevention is better than cures ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ prevention ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, it is not a bacteria ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਲਫ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਈ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਕੋਰਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, no it's not like that, it's a virus ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਆਪਣਾ ਹਾਈਜੀਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, if somebody is sneezing ਜਾਂ coughing ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 1 feet ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, 3 feet ਰੱਖੋ ਯਾਨੀ ਕਿ 1 hand distance ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। then you are washing your hands, you have to use mask अपने use करो, अगर ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਣ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧੋ ਰਹੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰਸ ਰੱਖੋ ਐਲਕੋਹਲ ਬੇਸ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ we have to use proper sanitizers,
राइट। उस तो बाद की रेस्पिरेटरी हाइजीन, वी डोंट हैव टू यूज आवर हैंड्स कि ਆਪਾਂ जो खांसी कर रहे जुकाम कर रहे, दैट इज नॉट द प्रॉपर वे। ਜਦੋਂ ਵੀ ਖਾਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਯੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਂਡ ਐਲਬੋ ਬੈਂਡ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਿਸ਼ੂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ ਆਫ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਰਹੇ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੋਲੋ ਇਟ। अगर वो कह रहे हैं कि तुसी एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करो, वी हैव टू मेंटेन दैट, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना हैगा, ठीक है। एंड देन तुसी बाहर ज्यादा मतलब कि अगर आप मार्केट विच जाना है, जिवें आज लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्सेशन दी है, रिलैक्सेशन का मतलब ये नहीं कि असी सारे कट विच मतलब पूरा परिवार बाहर निकल गया है एंड वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग वगैरह, मतलब घर दा एक मैंबर निकले वध तो वध 2 निकलन, मतलब दे हैव टू फॉलो दीज रूल्स, क्योंकि यह जिहड़ा काम हैगा कोरोना ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਆਣਾ, ਇਟਸ ਜਸਟ ਨਾਟ ਦ ਵਰਕ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਰੀਅਲੀ ਹਾਰਡ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟਨੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ I would like to say कि ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ I think 23rd March was the first day ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ, ਐਂਡ 23rd June ਮਤਲਬ ਆਲਮੋਸਟ 3 months ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੇਸਿਸ ਘਟਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਸਿਸ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਈ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? आई थिंक सोसाइटी का ये रोल है, गवर्नमेंट अपनी तरफ तो बेस्ट कर रही है, उन्होंने कोविड हॉस्पिटल बनाए हैं, उन्होंने लॉकडाउन लाया है, ठीक है, बट गवर्नमेंट का साथ आपा देना है, असि लोगों ने देना है। वी हैव टू मतलब पुट इक्वल एफर्ट्स कि अगर गवर्नमेंट सरकार साडे लई इन्ना कर रही है, उन्होंने जो लॉकडाउन लाना सी लाता है, जो रिस्ट्रिक्शंस लानियां सी लातियां, उस फॉलो किसने करनियां है? फॉलो असी करनी है, सोसाइटी के लोगों ने फॉलो करना है। ते असी मतलब कि अगर फॉलो नहीं करांगे ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੌਣ ਉਹਨੂੰ ਸਫਰ ਕਰੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਹੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਨ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਆਲਸੋ ਵੀ ਟੇਕ ਸੱਚ ਕੋਵਿਡ ਫ੍ਰੀ এনवायरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਰਿੰਪੀ ਆਪका ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ, ਹੈਲੋ यस मैम, आपका ना बीच में नेटवर्क कट रहा था। कटियार जी आप कुछ कहना चाहते हैं? कटियार जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी बोलिए। जी डिम्पी जी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ। ये यहाँ पर इंडिया में लखनऊ में बहुत लोग कह रहे हैं कि सैनिटाइजेशन का प्रयोग अधिक किया गया, यदि तो ये भी नुकसानदायक है क्या हमारे शरीर के लिए? सर सैनिटाइजेशन तो मैंने कहा नुकसान है, बट हाँ सबसे पहला जो मेन तरीका है हाथ धोना साबुन से, साबुन पानी से, बट हाँ साबुन पानी हर टाइम पे अवेलेबल नहीं, तो आप एक सैनिटाइजर अपनी पॉकेट में कैरी करके चलते हैं, राइट। तो अल्कोहल बेस्ड होना चाहिए, बट उसका यूज क्या, उसके लिए हमें नुकसान नहीं है, बट वी हैव टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस व्हाइल वी आर यूजिंग द सैनिटाइजर्स। जैसे कहते हैं कि जब भी आपने गैस वगैरह का काम करना है, फायर के पास में जाना है, तो दिस सैनिटाइजर इज अल्कोहल बेस्ड सर, अल्कोहल बेस्ड है, तो उसको यूज करने के एकदम बाद में आपको फायर के पास में नहीं जाना, बिकॉज इट कैन कैच फायर। फर्स्ट इज दिस प्रिकॉशन कि उस चीज का आप ध्यान रखें। सेकंड इज कि अल्कोहल बेस्ड है तो आपके हाथ ड्राई हो जाते हैं सर इसको यूज करने से। तो जिनको स्किन प्रॉब्लम है, जिनको थोड़ा सा इरिटेशन का प्रॉब्लम है, जिनको ये कंटेंट सूट नहीं करता है, जिनको ड्राइनेस हो जाती है, वो ये कर सकते हैं कि हाँ दे कैन कीप मॉइस्चराइजिंग देयर हैंड्स आल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि वो ड्राइनेस का जो प्रॉब्लम है उनको वो ना हो। अदरवाइज इट्स नॉट हार्मफुल, इट्स यूजफुल। वी शुड प्रॉपर्ली सैनिटाइज आवरसेल्व्स। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग मास्क, मैं कटियार साहब मैं आपकी मास्क के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि इसको दिन में कई बार उतार लेना चाहिए। कटियार साहब मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने सैनिटाइजर के बारे में बोला, डॉक्टर डिम्पी ने भी बताया, देखिए एक्चुअली क्या है कि अल्कोहल जो है वो इन्फ्लेमेबल है। अगर आप यूज करके किसी आग के पास, फ्लेम के पास जाते हैं तो वो नुकसानदायक है, अदरवाइज वो तो नुकसानदायक नहीं है। क्योंकि ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो स्किन कैंसर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, इतना कौन सा हम लोग यूज कर रहे हैं। हाँ ये जरूर है कि हम लोग हैंड वॉश से अगर हाथ धोए तो वो ज्यादा बेटर है, लेकिन जहाँ हैंड वॉश अवेलेबल नहीं होता वहाँ जेल वाला या लिक्विड जो हम यूज करें सैनिटाइजर, तो उसमें कोई बुराई नहीं है।
क्योंकि देखिए वो अल्कोहल है, कोई ऐसी चीज नहीं है। हाँ, एक आता है सोडियम हाइपोक्लोराइड, जो आपको याद होगा जब लॉकडाउन की स्टार्टिंग हुई थी तो नोएडा के डीएम को सस्पेंड भी हुए थे, जो योगी जी ने किए थे, जो ह्यूमन बॉडी पर हाँ, उन्होंने दूसरा केमिकल सोडियम हाइपोक्लोराइड स्प्रे करवा करा। दिया जी। हाँ, सोडियम स्प्रे करा। हाइपोक्लोराइड जो है उसमें कास्टिक सोडा और क्लोरीन, ये चीजें मिक्स होती हैं, वो ह्यूमन बॉडी के लिए नहीं है। लेकिन अल्कोहल जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदायक नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं है, सिर्फ आग से दूर रहिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां तक ड्राइनेस की बात की डॉक्टर डिम्पी ने, मैं आपको बताता हूँ, मेरा अपना खुद, मैंने जैसे अभी जिक्र किया केमिकल का काम है, तो ड्राइनेस को बचाने के लिए उसमें एलोवेरा और ग्लिसरीन मिक्स की जाती है, जो आपके हाथों को जो मॉइस्चर भी मिलता रहे, वो भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ये चीजें ज्यादा महंगी भी नहीं है। और इस मैं थोड़ा सा टॉपिक चेंज करके आपको जिक्र करता हूँ। कटियार साहब, आपने एक चीज देखा होगा कि इस लॉकडाउन के दौरान लोगों के खर्चे बहुत कम हो गए, बाहर खाना बंद, घूमना फिरना बंद, हाँ, कम हो। फालतू की जो थे ना, हमने जो आडंबर पाल रखे थे वो बंद हो गए। जो किसी का घूमने फिरने के खर्च, जी जी जी, जो किसी का घर का किचन का खर्चा जो होता था वो 25,000, वो रह गया 10,000 से भी कम रह गया। मिडिल क्लास की बात करता हूँ, और मिडिल क्लास का वो खर्चा 5,000 से भी कम रह गया। एक्चुअली में क्या था, खर्चे हमारे यही थे, हम लोगों ने बढ़ा चढ़ा के इसको पिज्जा बर्गर ये वो लटरम पटरम में बना दिया था। हमारा एक्चुअल खर्चा यही था। आज वही खर्चा, अब मैं आपको बता दूं, देखिए 17 मई के बाद लॉकडाउन 4 खत्म हो गया, जो गवर्नमेंट ने कहा अनलॉक जो फर्स्ट स्टार्ट हो गया, उसके बावजूद 95% लोग आपको गोलगप्पे खाते या पिज्जा बर्गर खाते नजर नहीं आएंगे। सबसे पहले तो टीवी, फेसबुक, हर सोशल साइट पे पहले गोलगप्पे ही आए। मतलब गोलगप्पे, देखिए गोलगप्पे लोगों के बंद हो गए, पिज्जा बंद हो गया। अगर आपने सुनी हो, एक न्यूज दिल्ली से आई थी, दिल्ली का एक पिज्जा डिलीवरी बॉय जो कोविड-19 पॉजिटिव था, वो 72 फैमिलीज को जाके उसने पॉजिटिव कर दिया था। वो न्यूज के बाद लोगों ने बाहर से पिज्जा मंगवाना भी बंद कर दिया। अब हालात ये है कि मतलब आप मार्केट में देख लीजिए, जितने रेस्टोरेंट खुले हैं वहां पर कस्टमर नहीं है। चंडीगढ़, अगर डिम्पी जी के पड़ोस में ही है चंडीगढ़ के एक रेस्टोरेंट मालिक का एक एनडीटीवी पे इंटरव्यू में देख रहा था, उन्होंने कहा जी मैं अपना रेस्टोरेंट नहीं खोल रहा। रीजन क्या है, 8 जून के बाद जो खोलने थे, परमिशन मिली गवर्नमेंट से, उन्होंने नहीं खोले। वो कहते हैं जी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग आना बंद हो गए हैं, मुश्किल से 10-15% कस्टमर आ रहा है। 10-15% में मेरे एसी का खर्चा नहीं निकल रहा है, मैं अपनी लेबर की सैलरी कहां से निकालूंगा, मैंने बंद कर दिया है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। जो देखिए लोअर क्लास में तो अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है, मिडिल क्लास में भी मैं ये कह सकता हूँ कि 50% के आसपास लोगों में अवेयरनेस आ गई है, जो रेस्टोरेंट वगैरह जाना जिन्होंने बंद कर दिया है। अपर मिडिल क्लास में भी अवेयरनेस है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का लगभग 50% लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और लोअर मिडिल क्लास में 80% लोगों में अवेयरनेस नहीं है। अब आप देख लीजिए, ज्यादा केसेस जो निकल के आ रहे हैं वो स्लम एरिया से निकल के आ रहे हैं। उसका कारण क्या है, लोगों में अवेयरनेस ना होना। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे सुनने में आया, हमारी मेड ने मेरी वाइफ को फोन करके बताया कि उनके पड़ोस में एक किसी को कोरोना पॉजिटिव निकला। वो क्या था, धोबी के पास जाके झुंड बना के बैठ जाते थे। अरे लॉकडाउन है, अपने घरों में रहो ना यार। धोबी के पास, धोबी आ गया, उसके पास जाकर झुंड बना के बैठ गए। एक की मदर की 15 डेज पहले कोरोना से डेथ हुई थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि उसकी डेथ कोरोना से हुई है। वो लड़के को कल रात को कोरोना निकला तो पता लगा जी उसकी मदर पॉजिटिव थी, उस वजह से उसको निकला। अब वो धोबी के पास जो झुंड बना के बैठते थे वो सारे के सारे लपेटे में आ गए। यही चीज है ना कि अवेयरनेस है और लोगों को इसके प्रति जागरूक होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जैसे कि कटियार जी, आपका एरिया जो है यूपी एरिया, वो पॉपुलेशन के हिसाब से भी और एजुकेशन के हिसाब से भी थोड़ा सा उसे गिना जाता है कि लोगों में उधर अवेयरनेस कम है और एजुकेशन की भी कमी है। और इस सब की सिचुएशन में तो गवर्नमेंट से क्या फैसिलिटीज मिल रही है आपके एरिया में? गवर्नमेंट से बहुत फैसिलिटी थी, और गवर्नमेंट ने तो राजधानी लखनऊ सहित कितने बड़े शहर थे सब में सरकारी किचन 2 महीने चलाई। 2 महीने किचन चला के हमने जनता को खाना खिलाया, गरीब जनता को जिनके पास काम नहीं था इस लॉकडाउन पीरियड में।
और उनको सुरक्षा के जितने साधन थे वो वितरित कराए। और अभी भी हम लोग रेलवे स्टेशन पे किचन चला रहे हैं, जो भी यात्री वहां पे आते हैं उनको हम लोग खाना दे रहे हैं और सैनिटाइज की व्यवस्था कर रहे हैं। सरकार की ओर से जितने संसाधन थे कराए जा रहे हैं, पर इसमें जनता का सहयोग बहुत जरूरी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो लोअर क्लास है, जैसे EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कॉलोनी है, तो उसके अंदर जो घर है, घरों में इतनी जगह नहीं है कि आदमी उसमें सोशल डिस्टेंस का पालन कर सके। घर के बगल में घर, घर के बगल में घर, और वो सब लोग बाहर निकल के अपना दैनिक काम करते हैं, तो सोशल डिस्टेंस वहां नहीं रह सकती। दूसरी, इंडिया में जो मार्केट्स हैं, दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, उसमें एक मालिक बैठा और एक उसका सेल्समैन बैठा, उससे भी डिस्टेंस नहीं हो सकती। तो कुछ समस्याएं हैं हमारे यहाँ, जो हमारी भौगोलिक समस्याएं, हमारी आर्थिक समस्याएं हैं, और इस वजह से ये बढ़ता जा रहा है। अब इसका ये है कि जनता को समझना होगा कि हम अगर इसको बचाना चाहते हैं तो मुझे सावधानी रखनी होगी। अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो उसकी लपेट में आ जाएंगे। ये हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या है, और सरकारी तौर पर सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। कुछ नीतियों में निर्णय लेने में आगे पीछे ये हुआ कि लॉकडाउन जब फर्स्ट हुआ था तो जितने भी बड़े शहरों में लेबर्स थे, तो उसी समय उनको यदि ट्रेन से या साधनों से घर पहुंचा दिया जाता और फिर लॉकडाउन थोड़ा लंबा चला दिया जाता, तो ये इतनी तेजी से फैलता नहीं। वो ये कि पहले लॉकडाउन 1, 2, 3 हो गया, और चौथे में जब पहुंचे तब लेबर्स का आना चालू हुआ, जहाजों से, ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन चलाई गई, स्पेशल बसें चलाई गई। और मेरी भी ड्यूटी थी उसमें, यात्रियों जो भी बाहर से श्रमिक आ रहे थे लखनऊ से, विभिन्न बसों में बैठा के उनको दूसरे जिलों में भेजना। तो मैं देखता था, कहता भी था, डांटता भी था, निवेदन भी करता था, लेकिन डिस्टेंस का पालन नहीं हुआ और बसों में भर भर के उनको भेजा गया। तो जाहिर है उसमें ये भी एक रीजन गिना जा सकता है कि जैसे लोग कुछ भी कह लो, वायरस के डर की वजह से या कुछ भी कह लो, लेकिन लोग निकले, अपने अपने घरों के लिए निकले, ट्रांसपोर्टेशन की कमी की वजह से भी लगा लीजिए, और कुछ अवेयरनेस की कमी, एजुकेशन की कमी, जहाँ घर पहुंचने की जल्दी, स्टेशनों पर भी काफी, चाहे इन्होंने लॉकडाउन था फिर भी ये लोग वॉक करके गए। आई थिंक ये भी काफी लोगों का मैंने देखा कि जैसा कि सोशल साइट पे वीडियोस वगैरह दिखा रहे थे कि वो झुंड बना बना के जा रहे हैं। तो आई थिंक ये भी एक वजह हो सकती है आपके में ज्यादा होने की। अब जैसा कि परविंदर जी ने कहा कि इंडिया में जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं उनके लिए कोई पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं है। इंडिया जैसे जितने बड़े देश हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, तो वहां पर समस्या है सरकारों की। यदि वो अधिक सख्ती करेंगे तो फिर वो लोग उनका अगले आने वाले इलेक्शन में सहयोग नहीं करेंगे, तो अधिक सख्ती नहीं कर सकते। कटियार साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि इंडिया में वोट बैंक, ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन मैं आपकी जानकारी में एक छोटी सी बात और डालना चाहूंगा। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये किया है कि जो पान खा के या गुटखा खा के थूकता है उस पर पहली बार में 500 रुपए फाइन, दूसरी बार में 1000 रुपए फाइन, और जिसके पास पैसे नहीं है उस पर सेक्शन 188 में 188 में उस पर कार्रवाई हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, गवर्नमेंट ने ये चीज अनाउंस कर दी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? इम्प्लीमेंट करने में सबसे बड़ी एक बात और ये कि अगर थूकने पर ओपन ही क्यों है, स्टोर ओपन ही क्यों किए थे? जी कुछ कह रहे हैं एडवोकेट साहब, जो आपने बात बोली बिल्कुल सही बोला कि इम्प्लीमेंटेशन, हम यहाँ पे गाइडलाइंस, रूल्स, रेगुलेशंस जैसे गवर्नमेंट ने बहुत बना दिए, ये करना है, वो करना है। वही जो बात मैंने पहले बोली थी कि सोसाइटी, उसका एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन किसी भी गाइडलाइन का हमारी सोसाइटी ने ही करना है। सोशल डिस्टेंस, हाँ गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने हमें बोला कि करना है, बट वी आर नॉट फॉलोइंग इट। हमें बोला गया है कि हम मतलब एक हाइजीन मेंटेन करें, एक रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन करें, वो हम लोग नहीं कर रहे हैं। देन हमें बोला गया कि मास्क यूज किए जाएं, ठीक है, हम लोग वैसे अपना हाइजीन मेंटेन करें, वो हम नहीं कर रहे हैं। अगर रिलैक्सेशन दी गई है उसका हम बहुत मतलब मिसयूज कर रहे हैं, सब लोग इकट्ठे होकर बाहर जा रहे हैं। जैसे अभी एनएम सर ने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था मास्क से रिलेटेड, कि मास्क हमें मतलब कि रेगुलरली यूज करने हैं। डेफिनेटली मास्क इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड टू अवॉइड दिस कोरोना इन्फेक्शन। देन अगर मास्क की बात करें तो हमारे पास मतलब वी आर हैविंग मेनी ऑप्शंस। N95 मास्क ये बहुत कॉमन है, हॉस्पिटल्स वगैरह में हेल्थ केयर वर्कर्स वगैरह यूज करते हैं। देन वी आर हैविंग डिस्पोजेबल मास्क जो कि रीयूजेबल नहीं है, डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है। बट बिकॉज अभी इतने यूजेज के कारण इनकी अवेलेबिलिटी थोड़ा सा शॉर्टेज आ गया है, तो हम घर पे अपने जो हैंड होममेड हमारे मास्क है हम वो यूज कर सकते हैं क्योंकि रीयूजेबल है।
बट एज अ डॉक्टर अगर मैं बात करूं, हम लोग का कुछ फंडा रहता है सर। अगर मैंने 4-5 मास्क अपने लिए पर्सनल यूज के लिए रखे हुए हैं। जो मास्क मैंने आज पहना हुआ है वो मैं आई यूज इट, मैं घर पे जाऊंगी उसको साइड पे रखूंगी एंड उसको आई विल रीयूज इट आफ्टर लाइक 4-5 डेज अगेन। सेकेंड डे को सेकेंड मास्क, थर्ड डे को थर्ड डे, फोर्थ डे को फोर्थ, फिफ्थ डे को मैं फर्स्ट मास्क अपना रीयूज कर सकती हूँ। इट्स बिकॉज ऑफ कि वायरस कितनी देर एक सरफेस पे रिटेन रहता है। इट्स नॉर्मली 72 आवर्स, जो कि एक स्टडी के अकॉर्डिंगली जो सामने आया है। तो एनएम सर के ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दिया है। बाकी अवेयरनेस की जो आपने बात की थी, तो अवेयरनेस में जैसे हमारे एनजीओस बहुत आगे आए हैं सर, वो मतलब कि दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वी मस्ट रियली अप्रिशिएट इट। कि वो जाके जैसे कि लोग जो घर पे बंद हैं उनको राशन पानी देने में बहुत हेल्प कर रहे हैं, पुलिस भी यही काम कर रही है। लेकिन जो हॉस्पिटल्स है, एज अ हॉस्पिटल हेल्थ केयर वर्कर, व्हाट वी आर डूइंग कि डॉक्टर्स जो हैं, हम लोग जैसे एक अवेयरनेस टॉक कैंप लगाते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। जैसे कि अभी गवर्नमेंट सेक्टर्स खुले हैं, पब्लिक डीलिंग में 33% स्टाफ आएगा। तो व्हाट वी आर डूइंग कि वी आर गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड वी आर स्प्रेडिंग अवेयरनेस। कोरोना के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत आज के टाइम में है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग अवेयर नहीं है, उनको पता नहीं। डॉक्टर टीम भी एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि चलो मैं तो यहाँ दूर बैठे, हम लोग तो वहाँ के जो हमारे जर्नलिस्ट है या न्यूज कवरिंग वाले, उनसे ही पता चलता है कि जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जो डॉक्टर है वो पेशेंट को अच्छी तरह से, वायरस की वजह से डॉक्टर खुद डरे हुए हैं और पेशेंट का अच्छे से वो ट्रीट नहीं कर रहे। और डॉक्टर कहते हैं कि हमारे पास पूरी तरह से ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन या प्रॉपर हमारे पास कोई वे नहीं है, किट्स नहीं है। तो इसके मामले में आप क्या कहेंगी, कितनी सच्चाई है इस बात में कि डॉक्टर जो है अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे पेशेंट को? मैम डेफिनेटली, जैसे कि मैं पहले कह रही थी कि ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो मतलब कि वी आर हैविंग लैक्स ऑफ केसेस नाउ टू डील विद। मतलब एवरीडे केसेस आर जस्ट इंक्रीजिंग। तो डेफिनेटली कोरोना मतलब कि जब स्टार्ट हुआ था तो हमने कुछ हॉस्पिटल्स को कोविड हॉस्पिटल अनाउंस किया था, उसमें पेशेंट्स का ट्रीटमेंट हो रहा था। तो उसके हिसाब से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प मिली है, एनजीओस की तरफ से हेल्प मिली है। एक पीपीई किट जो मतलब कि डॉक्टर्स को इस्तेमाल करना है, जो पेशेंट के मतलब कि ट्रीटमेंट के लिए चीजें वो इस्तेमाल करनी है, वो सब प्रोवाइड की गई। बट जैसे जैसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं तो डेफिनेटली उस चीज को, कमी को पूरा करने के लिए नंबर ऑफ हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल्स है उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। एंड वहां पे मतलब कि आईसीयू बेड, जैसे कि पहले एडवोकेट साहब ने बोला कि आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। जैसे कि अभी अरविंद केजरीवाल जी का भी एक अनाउंसमेंट आया था कि हम बाहर के पेशेंट्स नहीं लेंगे, आउट ऑफ स्टेट नहीं लेंगे, क्योंकि दिल्ली में ही नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए हैं। तो इट्स लाइक बोथ वेज, वी कैन से कि ऐसे नहीं कह सकते कि हमें किसी तरह का हेल्प नहीं मिल रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट, डेफिनेटली हमें हेल्प मिल रहा है। गवर्नमेंट की हेल्प के बिना तो हॉस्पिटल्स मतलब अपना काम कर ही नहीं पाएंगे, डॉक्टर्स लोग अपना काम कर ही नहीं पाएंगे। तो द थिंग इज कि मतलब कि सोसाइटी, अगेन आई विल से, आई विल फोकस ऑन द सेम थिंग कि अगर सोसाइटी अवेयरनेस बढ़ जाए, नंबर ऑफ केसेस मतलब कि एक कंट्रोल में आ जाए, एंड बढ़ने की जगह वो थोड़े से कंट्रोल में आके कम होने लग जाए, तो शायद हमारी ज्यादा सहायता हो जाएगी, हेल्प हो जाए। सो ये नहीं डॉक्टर, उसके बाद मैं डॉक्टर्स पे आऊं तो ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स ट्रीटमेंट नहीं कर रहे। इफ वी सी, अगर हम हॉस्पिटल के अंदर जाके मैम देखें तो जैसे दिन और रात हम हॉस्पिटल में ही रहते हैं, वी नो द सिचुएशन देयर कि एक डॉक्टर को वो पीपीई किट पहन के 24 घंटे भी खड़े होना पड़ रहा है। अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी है, कोई ऑपरेट करना है, तब भी वो पीपीई किट पहन के कर रहा है। तो इट इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन। मे बी जो लोग बाहर हैं उनको वो ओरिजिनल सिचुएशन, जो रियल टाइम सिचुएशन है, वो उनको पता नहीं है। बट इफ यू आस्क मी, द सिचुएशन इज कम्प्लीटली रिवर्स। आप अंदर जाके एक बार हॉस्पिटल से अपनी जान लगा के उसको भी सफर हो रहा है। हमने पास में सुना 2 मिनट हॉस्पिटल है हमारा चंडीगढ़, तो उसमें डॉक्टर्स भी इफेक्ट हो गए पेशेंट ट्रीट करते करते। So that is a dedication of this profession. डॉक्टर डिम्पी, परविंदर जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ जी परविंदर जी, आप कुछ बोलो। डिम्पी जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बताना चाहूंगा। देखिए, मैं पंजाबी जी गल करता हूँ, थोड़ा नहीं वो उनकी लैंग्वेज हिंदी है। पहले स्टार्टिंग च चीज़ां आईयां सन कि डॉक्टर्स नूं पीपीई किट्स अवेलेबल नहीं हो रही सन, लेकिन हुण पीपीई किट्स जिवें पिछे जे साडे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने गल कही, और वाकई सच्चाई है, क्योंकि मेरे अपने कुछ नॉन हैगे ने
ਜਿਹੜੇ PPE ਕਿਟਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ, PPE ਕਿਟਸ, ਮਾਸਕ, ਗਲਵ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ LNJP ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਬਿਨਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ MCD ਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ CCTV ਕੈਮਰਾਸ ਲੱਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਗ ਏਰੀਆ, ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਏਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਸ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੀਰਾਗੜੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਧੇ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਰਿਜ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ 2,40,000 ਸਕੁਅਰ ਫੀਟ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਦੂਸਰਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ। ਉੱਥੇ 10,000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ 500 ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਵਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਥੋੜੇ ਲੇਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਔਰ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2 IAS ਆਫੀਸਰ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, 2 IAS ਆਫੀਸਰ ਅੰਡੋਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੋਂ, ਔਰ 2 IAS ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਟੋਟਲ 6 IAS ਆਫੀਸਰ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ BJP ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗੀ, BJP ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹੇਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬੈਟਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ LNJP ਦਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ CCTV ਲਗਾਓ, 500 ਜਿਹੜੇ ਰੇਲਵੇ ਕੋਚ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਬਣੇ ਨੇ, 10,000 ਬੈੱਡ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ, ਦਿੱਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਟ ਹਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, PPE ਕਿਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼, TV ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿ 4.5 ਲੱਖ PPE ਕਿਟਸ ਡੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੈਪੇਬਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੁਝ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ। PPE ਕਿਟਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਦੱਸੋ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰਡ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਡਿੰਪੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਐਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 42 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ PPE ਕਿਟਸ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਵੈਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਐਗਰੀ ਸਰ, ਐਗਰੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਵਕਤ ਹੈ। ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਹੋ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪਲੋਏ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤੇ ਵਾਈਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਟਿਆਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ सहूलत मिलनी चाहिए या अवेयरनेस के लिए या लोगों को जागरूक करने के लिए आपको और क्या करना चाहिए? अभी जागरूक करने के लिए सर्वप्रथम जितनी वेलफेयर संस्थाएं हैं, जो भी वेलफेयर का काम करती हैं, चैरिटी संस्थाएं हैं, इनको आगे आना चाहिए और इनको अपने मोहल्ले में, अपने कस्बे में जागरूकता फैलानी चाहिए। सैनिटाइजेशन के जो साधन हैं, कोरोना से बचाव के जो साधन हैं, उनका वितरण भी पब्लिक को करना चाहिए और उनको उत्साहित करें
कि इनका पालन करें, तभी कोरोना से बचाव हो सकता है। केवल सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये पब्लिक की स्वयं की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्वास्थ्य को ठीक रखे और इन बीमारियों से बचा कर रखे। और जहां तक यूपी के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने डॉक्टर्स थे उन्होंने, नर्सिंग स्टाफ था उन्होंने, और जो हमारे पुलिस विभाग के पुलिसमैन थे उन्होंने, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट अथॉरिटीज के कर्मचारियों अधिकारियों ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और पूरे कोरोना लॉकडाउन के दौरान बाकी आम पब्लिक तो अपने घरों में थी, लेकिन इन विभागों के लोग लगातार खतरा उठा के ड्यूटियां कर रहे थे, रात दिन दौड़ रहे थे। और यहाँ तक कि जो डॉक्टर्स और पुलिस वाले घर लौटते थे तो वो घर में अंदर नहीं घुसते थे, उनको खाना उनके परिवार के लोग बाहर ही दूर से देते थे और बाहर ही बैठ के खड़े होकर खा के फिर ड्यूटी निकल जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसमें लापरवाह हैं। हाँ, इतना बड़ा तंत्र है, सिस्टम है, कुछ डॉक्टर्स हो सकता है या पुलिसमैन हो सकता है कुछ लापरवाही की हो, ये इतनी बड़ी व्यवस्था में इतना नॉमिनल तो होता ही है, परंतु फिर भी हम लोगों ने, सरकारी तंत्र ने बहुत इसका बचने के उपाय किए। और अब जिम्मेदारी समाज की है, सामाजिक उत्तरदायित्व है कि इन उपायों को अपनाएं और जो भी गाइडेंस दिए हैं गवर्नमेंट ने उनका पालन करें, तभी इससे हमारा बचाव हो सकता है। और जहां तक टीके की बात है तो मेरा जहां तक अनुभव है कि जब मैं 1986 में हाई स्कूल में पढ़ता था, 83-84 में जब 8वीं-9वीं में था, उस समय एड्स ये नई बीमारी आई थी और तब से आज तक एड्स का कोई टीका नहीं खोज पाया गया। तो इतनी जल्दी हम आशा ना करें कि अगस्त में आ जाएगा, सितंबर में आ जाएगा। ये टीका तो जब हो पाएगा तभी हो पाएगा, और इस आशा में ना बैठे रहें कि टीका आ जाएगा तो बस सब ठीक हो जाएगा, तब तक हम अपना इधर उधर करें। हमें बचाव के साधन अपनाने, उनको आदत में लाना है, उनको अपनी सामाजिक आदत में लाना है। यही मेरा संदेश है, यही अनुरोध है सभी लोगों से। बिल्कुल। मैं दो बातें करना चाहूंगा। एक तो आपने जो बात की पुलिस की, देखिए कोरोना तो ये जो पेंडेमिक आया, इसमें एक चीज बहुत बड़ी पॉजिटिव निकल के आई। हमारे भारत के लोग जो गालियां देते थे, पुलिस की छवि बहुत सुधर के आई इसमें, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इंडिया के ऊपर से, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पुलिस की छवि जो बहुत सुधरी, और वाकई जो पुलिस ने 24 घंटे काम किए वो चीज। और दूसरी बात आपने जो किया है वो टीके वाली, ये सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे जो भारत के लोग, खासकर हमारे भारत के लोग ना, पता नहीं क्यों ये करिश्मा, ये इन चीजों पर बहुत विश्वास करते हैं। नहीं है। मैं अभी कल की घटना बताऊं। कल की घटना, कल मैं लखनऊ के पास एक बक्सी का तालाब है, उस तरफ मैं गया तो वहां पर एक गांव था, तो मैं बाहर गाड़ी रोका, बातचीत किया, तो एक ओल्ड मैन थे। मैंने उनसे पूछा कि भाई कोरोना की क्या स्थिति, तुम्हारे यहाँ कोई खतरा तो नहीं है? तो उसने कहा अरे साहब, मेरे गांव में एक बाबा है, वो कोरोना बाबा है, और जब तक वो है तब तक मेरे गांव में कोरोना नहीं होगा। तो अभी भी इस तरह के लोग। यूपी से खबर आई थी कि कुछ औरतों ने कोरोना देवी की पूजा की और खुद उसी कोरोना से डेथ हो गई उनकी। मतलब ये अंधविश्वास, छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास है। बिल्कुल, आप सभी की बातों से यही है कि सिचुएशन जितनी भी बैड है, अगर यूनिटी और हमारा मिलके साथ, और हमारा समाज के सभी लोग, संस्थाएं क्या, हम आम आदमी क्या, पॉलिटिक्स क्या, सभी लोग मिलके अगर कोशिश करेंगे तो हर चीज को कहते हैं कि यंग जीती जा सकती है। आखिरी में डेफिनेटली सर, कोरोना, एक मिनट डिप्टी जी, कोरोना की अगर कोई एक दवाई है वो सब तो वधिया हैगी है कि जिन्ना हंस खेड लो, जिन्ना खुश रहो, कोरोना की सब तो वधिया दवाई है ये। बिल्कुल, पॉजिटिव माइंड हो। समझ होंगे कि पॉजिटिव माइंड ये सब कुछ है। अगर आपके ब्रेन में पॉजिटिविटी है ना, तो सबको आप किसी भी बीमारी पे कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेटली पॉजिटिव माइंड और पॉजिटिव थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। एंड कोरोना के साथ अडेप्ट करना पड़ेगा, डर के हम लोग अंदर बैठ नहीं सकते हैं। डेफिनेटली जो सीनियर सिटीजन हैं, हमारे 60+ हैं, बच्चे हैं, उनका जरूर हमें ध्यान रखना है। एंड डेफिनेटली वही चीज है कि मिलके सब कुछ होगा। अकेले बैठ के अगर घर में बोलेंगे कि नहीं, सरकार का काम है, पुलिस वालों का काम है, डॉक्टर्स का काम है, तो ऐसे वी कैन नॉट अचीव एनीथिंग। We all have to come together. We have to fight against this disease.
एंड डेफिनेटली एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हम सब बहुत जल्दी इस चीज से बाहर आ जाएंगे, इस पेंडेमिक से बाहर आ जाएंगे एंड विल बी हैविंग अ वंडरफुल प्लेस। मुझे लगता है अमेरिका इतना विकसित देश है और वहां भी इतने अधिक जो मौतें हुई, तो उससे तो लग रहा है कि अमेरिका के पढ़े लिखे लोगों ने भी इसका पालन नहीं किया। बिल्कुल। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि यहाँ पे यूएस में इस वक्त ऑलमोस्ट 22 मिलियन केसेस हैं, जिनमें से हमारे न्यूयॉर्क में ऑलमोस्ट 4 मिलियन के करीब, जस्ट न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क लॉकडाउन था और न्यूयॉर्क को लॉकडाउन करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के लोग नहीं, कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, ये नहीं है कि नहीं है, फिर भी ये लोग बाहर निकले हैं। और ये बड़ा है न्यूयॉर्क, जैसे कि बहुत पॉपुलेशन है यहाँ पे, हर स्टेट का, हर कंट्री का जो लोग है यहाँ पे रहते हैं। तो वही कह लें कि पढ़े लिखे सब कुछ है, जागरूकता भी है, फिर भी आई डोंट नो कि हम लोग समझ नहीं पा रहे कि ये लोग 2 दिन के लिए यहाँ का लॉकडाउन ओपन हुआ, जस्ट मंडे को ओपन हुआ, तो पूरा डाउन नहीं हुआ, ओपन हुआ जस्ट लाइक कि थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने टर्म बाय टर्म कंडीशन के ऊपर कुछ एक चीजें खोली, जैसे पार्क खोले, रेस्टोरेंट पिकअप खोला, लेकिन 2 ही दिनों में केसेस फिर बढ़े, जिससे हमारे यहाँ के मेयर बहुत गुस्से में है। वो उनका गुस्सा भी जायज है। अगर उन्होंने हमें फैसिलिटी दी, जैसे डिम्पी जी ने भी कहा, परविंदर आप लोग भी कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट हमें फैसिलिटीज दे रही है और कुछ हमें छूट भी दे रही है कि चलो थोड़ी अपनी हिलो जुलो हिलजुल हो, थोड़ी इकॉनमी भी सही हो, तो हम सबका फर्ज बनता है कि हम अपनी पूरी सावधानी से बाहर निकलें, मास्क लगा के निकले, खुद को भी बचाएं, लोगों को भी सेफ रखें, खुद भी सेफ रहें। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखो, लिकर स्टोर, रेस्टोरेंट, पिकअप फूड के लिए भी लंबी लंबी लाइनें, जिनमें से 50% लोग जो है बिना आपको किसी भी सावधानी के, बिना मास्क के, बिना हैंड सैनिटाइजर, बिना ग्लव्स के आपको दिखेंगे। तो उसमें सबसे बड़ी कटियार साहब प्रॉब्लम क्या है कि एक तो अमेरिका जो है, अमेरिकन लोग ओवर कॉन्फिडेंस में मारे गए। दूसरी चीज क्या है, हर गवर्नमेंट की जहां तक बात करें, हर गवर्नमेंट, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे जापान की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश या छोटे से नेपाल की हो, सबके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि अपनी इकोनॉमी को संभालना। और इस वक्त में पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री की 200 से ज्यादा देश है, सबकी अपनी इकोनॉमी हिल गई है, तो इकोनॉमी संभालना गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। फिर यूएस की इतनी तो है कि इनके पास पब्लिक को फैसिलिटीज दे रहे हैं, इकोनॉमी तौर पे भी दे रहे हैं कि चलो उनका घर बार चल रहा है यहाँ पे। और हमारी जो कम्युनिटी है, जैसे हम सिख कम्युनिटी है, गुरुद्वारा साहब है, काफी राशन का प्रबंध इन लोगों के लिए करते हैं। काफी और सारी कम्युनिटियां हैं, बांग्लादेश कम्युनिटी है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी है, बहुत सारे सब मिलके मिलजुल के कर रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी काफी फैसिलिटीज मिल रही है। पर प्रॉब्लम यही है कि इतनी फैसिलिटी के बावजूद भी लोग जो है घर में टिक के बैठना। आई थिंक यूएस में केसेस बढ़ने का रीजन ही ये था कि वहां पे लोगों ने बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो नहीं किए। जैसे एडवोकेट साहब ने बोला कि ओवर कॉन्फिडेंस चीज थी, ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट इकोनॉमी है उनकी, तो वही उनको फिर भी, मतलब जब कोई डिजीज फैलती है, पेंडेमिक फैलती है, तो एक बेसिक प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। अगर वहां के लोगों ने ये चीज फॉलो की होती, सोशल डिस्टेंसिंग रखी होती, बेसिक हाइजीन मेंटेन किया होता, तो शायद आज ये सिचुएशन इतनी खराब नहीं। तो इंडिया में अगर हम देखें, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो काफी कंट्रोल में थी सिचुएशन। अब रिलैक्सेशन के बाद केसेस क्यों बढ़े हैं? द रीजन बीइंग कि लोगों ने वो बेसिक प्रिकॉशंस नहीं लिए, वो फॉलो नहीं किया है। वो फियर फैक्टर जो था अंदर, वो निकल गया है लोगों के दिमाग से। फियर फैक्टर होना जरूरी है, ठीक, थोड़ा बहुत होना जरूरी है, डेफिनेटली। ये नहीं कह रहे कि डिमोटिवेट लोग हो जाए, मोटिवेट होके हिम्मत से ही काम लेना है। बट एक ये चीज नहीं भूलना है कि हम लोगों की कॉन्ट्रीब्यूशन से इस चीज से बाहर निकाल सकते हैं। So we have to take care of all the basic precaution. I'm again and again focusing on this thing कि हाँ, हमें ये चीजें भूलनी नहीं है। आप बाहर जाएं, आप enjoy करें, खुश रहें, बट ये ना भूलें कि हाँ, हमें सोसाइटी को मिलके गवर्नमेंट की हेल्प करनी, अथॉरिटीज की हेल्प करनी है इस चीज। बिल्कुल डिम्पी जी, बिल्कुल डिम्पी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी। कटियार जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ आपने बताया। और परविंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा अच्छी आप सबने नॉलेज दी। और खास तौर पे
आपने हैंड सैनिटाइजर के बारे में बताया, मास्क के फायदे नुकसान सब बताए, बहुत ज्यादा थैंक यू आप सबका। जिस तरह की प्रीतनामा दे दर्शक, हाँ जी परविंदर जी कुछ असना ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਥਰੂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਂਡੇਮਿਕ और ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਨਾਨਕ ਚਿੰਤਾ ਮਤ ਕਰੋ ਚਿੰਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਿੰਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ एहतियात ਵਰਤੋ, लेकिन डिप्रेशन में जाके प्रॉब्लम में दुखी होने की लोड़ नहीं है। जो रब करेगा चंगा करेगा। सो खुश रहन लोग, बीमारी नाल 50% ते असीं खुश रह के लड़ सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता हूं। बिल्कुल पॉजिटिव माइंड है तो सब कुछ अच्छा है। जिस तरह मैं पहला भी गया सी ते बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਨਾਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ ਡਾਕਟਰ ਡਿੰਪੀ ਜੀ ਤੋਂ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਟਿਆਲ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਭ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੋਏਗੀ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਿ जो भी इस समय सिचुएशन वध रही है करंट जो है वो साडी अपनी अवेयरनेस करके है। सानू गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, डॉक्टर भी इस मुश्किल की घड़ी दे विच रब बन के अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। साडी वारी पब्लिक दी है, पब्लिक की वारी है, पब्लिक ने रिस्पॉन्स देना है ते पब्लिक ने अपना पूरा ध्यान रखना है। अपना मास्क लगा के निकलो, अव्वल तो वैसे तो निकलने की जरूरत ही नहीं जितों तक हो सके, क्योंकि लॉकडाउन है, काम कर है नहीं, अपना जितों तक हो सके घर बैठो। बाहर निकलना है फिर भी इंसान को हवा पानी की जरूरत है, काम भी जाना बाहर, मास्क लगा के निकलो, पूरी सावधानी के नाल निकलो, अपने सफाई रखो ते पूरी जागरूकता रखो, खुद भी सेफ रहो ते सारिਆਂ ਨੂੰ सेफ रखो। बहुत बहुत धन्यवाद सारिਆਂ ਦਾ। वाहिगुरु जल्दी ही सारी सिचुएशन ਨੂੰ कंट्रोल करके फिर पहला तो हसदे बसते हो जावांगे ते पॉजिटिव जिदा कि सारिਆਂ ने इको गल बार कही, दोबारा फिर मैं दोहरा रही हूं कि चिंता मुक्त रहो, स्ट्रेस फ्री रहो, भगवान का सिमरन करो, वाहिगुरु का नाम लो ते साफ सफाई रखो, सावधानी रखो। जंग वड्डी तो वड्डी जित्ती जा सकती है अगर तुहाडे दिमाग दे विच पॉजिटिविटी है, तुसी स्ट्रेस फ्री हो। सो सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच ऑल प्रीतनामा व्यूअर्स। फिर मिलेंगे जल्दी ही। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ।